شکن به قرآن اعدام باید کردن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جو آج کا موضوع رکھا گیا وہ ایران میں ہونے والے حالیہ فسادات ہیں، اور جو ہر کچھ وقت گزرنے کے بعد، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد رونما ہوتے ہیں، اور تقریباً ان کا دورانیہ 3 روز 4 روز بہت زیادہ ہوا 5 روز پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے ایشو، اور انقلابی طاقتیں اپنی طاقت کا اظہار کرتی ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو ہم گزشتہ کم و بیش 25-30 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے ہر 4 سال 3 سال 5 سال کا ایک وقفہ گزرتا اور اس طرح ہوتا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ بہت ہی مختصر جلدی بہت ساری باتوں پر روشنی ڈال رہے ہیں، بہت سارے جو اس وقت حالات ہیں، واقعات ہیں، ان پر بات ہو جائے، تاکہ انشاءاللہ ہماری وہ مخلص اور انقلابی عوام کی جو پاکستان کے اندر جن کا دل انشاءاللہ انقلاب اسلامی کے ساتھ دھڑکتا ہے اور وہ ان حالات سے پریشان ہوتی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ شواہد کے ساتھ کچھ اس طرح کی بات کر لی جائے کہ جنہیں ہر جگہ پر ثابت کیا جا سکے، ان پر گواہی لائی جا سکے، اور ان کو جو کہا جا رہا ہے اس کو انشاءاللہ حقیقت کی نگاہ سے خود بھی دیکھوں اور آپ کو بھی دکھانے کی کوشش کر سکوں۔ دیکھیں، جو موجودہ واقعہ ہوا ہے وہ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک خاتون کہ جو روٹین کی بات ہے روزانہ ایران کے اندر، ایران کے ہر شہر میں یہ روٹین کی بات ہے کہ جن کا حجاب خراب ہوتا ہے انہیں وہاں پر مختلف امر بالمعروف نہی عن المنکر کے گروہ کہ جو پولیس کے زیادہ تر پولیس ہی کے اندر ایسے افراد و شخصیات موجود ہوتی ہیں کہ جو اچھا اخلاقی انداز اپنا کے ان کو کسی حد تک سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کا خراب حجاب ہوتا ہے انہیں وہیں پر تذکر دے دیا جاتا ہے، انہیں سمجھا دیا جاتا ہے، ان سے اچھے انداز میں بات کر لی جاتی ہے، اور ان کے جس حد تک ہو سکتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ نے پہنا ہوا ہے اسے بہتر کر لیں۔ جن کا بہت ہی خراب ہوتا ہے پھر ان کو باقاعدہ ایک ادارے میں لے جایا جاتا ہے، اور وہ ادارے جو ہیں وہ ہر شہر میں کئی جگہ، ہر شہر میں کئی ادارے بنے ہوئے ہیں کہ جنہیں ادارہ نہیں عمل بالمعروف نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں پر پھر باقاعدہ ان کی کلاس ہوتی ہے، اور وہ کلاس جو ہے وہ اسی طرح سے جیسے ہم بیٹھے ہیں میز پر، جس طرح کرسیاں لگی ہوتی ہیں، اس طرح سے استاد اخلاق آتے ہیں، وہ لوگ کے جو نفسیات سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو معاشرہ اور جامعہ کو سمجھتے ہیں، وہ کہ جو پتہ ہے جنہیں کہ مغربی دنیا اس بے حجابی کے ساتھ اس عورت کو کہاں لے جانا چاہتی ہے، بڑے اچھے انداز میں وہ موعظہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج 30-35 سال ہو گئے یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، لیکن بہرحال جنہیں برا لگتا ہے، برا بھی لگتا ہے کہ پہلے تو انہیں یہ برا لگتا ہے کہ ہمیں حجاب جو ہے یہ اجباری کیوں ہے، ہمیں زبردستی پردہ کرایا کیوں جاتا ہے۔ اعتراض کرنے والی اعتراض کرتے ہیں، تو یہ اعتراض اس سے پہلے کہ جمہوری اسلامی پہ کیا جائے، یہ اعتراض اسلام پر کریں، یہ اعتراض قرآن پہ کریں اگر کرنا ہی ہے تو، کہ قرآن نے کیوں حجاب کو لازمی قرار دیا ہے، اسلامی تعلیمات میں کیوں حجاب لازمی ہے۔ تمام مذہبی اور اسلامی اور انقلابی شخصیات الحمدللہ اول انبیاء کے اول آغاز سے پھر ائمہ اہل بیت علیہم السلام، اور اس کے بعد پھر سارے یہ کیوں سب کچھ اس طرح سے، اس کا مطلب ہے کہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ جمہوریہ اسلامی میں ہو رہا ہے وہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے، یعنی اس پر تو بہرحال میرے نہیں خیال کہ بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آ جائیے پھر ہوتا کیوں ہے کہ ایک چھوٹا سا ایشو اتنا بڑا بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انقلابیوں کے جو انشاءاللہ اس وقت تسلط ہے انقلاب اسلامی کا، انقلابیوں کا جو تسلط ہے، جو مسلط ہو رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس پورے ایران کے اوپر، اور تیزی سے جو انقلابی لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ ایک وہ جو ترانہ مشہور ہوا سلام فرمان دے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایران کے بچے کے دل میں کس طرح کی خواہشات ہیں۔ یعنی جو انقلاب کا مضبوط اس وقت گرپ ہونا ہے خود ایران کے اوپر، اور ایسا لبنان پر، فلسطین پر، یمن پر، شام پر، یہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب اتنی مضبوط گریپ ہے تو یہ بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا موقع مل جائے
कि जिससे फिर हम बड़ा बना के पेश कर सकें। यानी इनको नहीं मिल पा रहा कुछ। और इसमें कौन कौन से अनासर शामिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। वो लोग कि जो दोबारा से बादशाही निज़ाम लाना चाहते हैं, वो लोग कि जो इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं। मैं इनकी तफसीलात नहीं बताता, भाई कि बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्रोह इस वक्त अलहदगी पसंद की तहरीकें चला रहे हैं, अलहदा होना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं मुल्क को। खूब मैंने कहा बादशाही निज़ाम के लोग जो वापस लाना चाहते हैं इस निज़ाम को, हत्ता ये ख़ातमी रफसंजानी और रूहानी और इन जैसे लोग के जो शिकस्त खा गए, महमूद अहमदीनेजाद जैसे लोग कि जिनको हम वहाँ उस मुल्क में बाहर लेफ्टिस्ट कहते हैं कि जिन्होंने शिकस्त खाई है और वो भी इन मुजाहरों में शामिल हुए हैं होते हैं। ये भी अनासर और एक बड़ा एलिमेंट और भी है कि जो महंगाई का सिलसिला है, और ये महंगाई आलमी है। अलग बात है कि ईरान में शायद आलमी महंगाई का जो तनासब है उससे ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा हो। क्यों है? क्योंकि वो दुनिया की पाबंदियों को देख रहा है। वो 50 साल कम व बेश 40 साल 40 साल और शायद 3 साल ऊपर हम लगाएं 43-44 ईयर्स हो रहे हैं जब से इनक़लाब इस्लामी ईरान आया है। ईरान मुसलसल पाबंदियों में है। इससे आसान आज़ाद नहीं है ख़रीदो फ़रोख्त में, या आज़ाद नहीं है ऑयल को बेचने में, ये आज़ाद नहीं है हत्ता कि बड़े बड़े मौज़ूआत जैसे जहाज़ की अगर रिपेयरिंग करवानी हो, ईरान आज़ाद नहीं है कि उसकी रिपेयरिंग बाहर से करवा ले। यानी इन पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। पड़ोसी मुल्क, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एलसीज़ नहीं खुलती, पाकिस्तान तिजारत नहीं कर सकता, खौफ है अमेरिका का। तो एक मुल्क के जो पूरी अल्हम्दुलिल्लाह शऊर के साथ और उसमें अवामी भरपूर शिरकत हुई है और अमेरिका से उन्होंने निजात हासिल की है। अमेरिका किस तरह से, आप पाकिस्तान को देखिए, अभी आपके मुल्क के एक सियासतदान जो हैं वो हल्का सा अमेरिका को सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कह देते हैं, या वही जुमला कह देते हैं कि हम ग़ुलाम नहीं हैं आपके। क्या हाल होता है उनका इस पाकिस्तान के अंदर, फिर किस तरह से कितनी ताकतें इस वक्त दाखिली तौर पे और ख़ारिजी तौर पे इमरान की हुकूमत को गिरा देते हैं और फिर साथ कोशिश करते हैं कि जो उसको अवामी मकबूलियत मिली हुई उसको कमज़ोर करने के लिए कितनी कोशिशें हो रही हैं। आपके सामने सोशल मीडिया क्या कर रहा है, किस तरह पाबंदियाँ लगती हैं मीडिया के ऊपर। ये तो आपके यानी पाकिस्तानियों को ये बात समझाना कि अगर अमेरिका से आपने इख्तलाफ किया है, यहाँ तो इख्तलाफ हुआ सिर्फ, वहाँ तो अमेरिका को मुल्क से बाहर निकाला गया है। जिस जगह अमेरिका को मुल्क से बाहर निकाला गया हो, अफ़गानिस्तान भी इंशाल्लाह उन्हीं में से है, इराक़ भी इंशाल्लाह उन्हीं में से है। तो आप समझते हैं कि अमेरिका की यहाँ साजिशें नहीं होंगी? हाँ, जो अमेरिका के साथ चलना शुरू कर दें, अमेरिका को कबूल कर लें कि हाँ भाई अमेरिका हमारी गैस ले जाए, अमेरिका हमारा पेट्रोल ले जाए, अमेरिका हमारा ब्रेन ले जाए, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ये सारे मुल्क आपके सामने। अगर तो आप इस तरह से चलना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, हमारी हर चीज़ जो है ना वो अमेरिका के हवाले, इसराइल के हवाले, हमारी हर चीज़ जो है वो बरतानिया के हवाले, जो चाहें वो इस मुल्क में करें, फिर तो आपके यहाँ भी इस तरह की ज़ाहिरी अमनीयत रह सकती है भाई कि वो फिर भी आपको ग़ुलाम अगर आप हो गए तो ग़ुलाम तर बनाएंगे। अगर आप अभी उनके सामने जो है वो सिर्फ सर झुकाते हैं तो वो कहेंगे घुटनों पे बैठ जाओ, और अगर आप उनके सामने घुटनों पे बैठ जाएंगे तो आपसे कहेंगे लेट जाओ। वो आपके सर पर, उसके बाद आखिर में आपके सर और गर्दन के ऊपर पाँव रख देंगे। यानी ये ग़ुलामी का सिलसिला कि रुकता है, कभी भी नहीं रुकता है। वो आप देख ही रहे हैं इस वक्त जो आपके वज़ीर आज़म साहब जिस तरह से ग़ुलामी में धंसते चले जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह के मुआहदे कर रहे हैं। ये जो नए बिल आपकी पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं, ये इसी तरह से जो इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। बहरहाल तो ये पाकिस्तानियों के लिए समझना बहुत आसान है कि अगर अमेरिका से आपने मुखालफत मोल ली है तो फिर अमेरिका और 40-45 साल अमेरिका किसी हुकूमत को गिराने के लिए कोशिश कर रहा हो, और ये निज़ाम विलायत फ़क़ीह अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर मजबूत और महकम है कि ये मिलियंस डॉलर, यानी मेरे पास इस वक्त जो है वो मौजूद है, मैं बता सकता हूँ कि ईरान इंटरनेशनल एक टेलीविज़न है कि जिसको ईरान के ख़िलाफ़ फ़ारसी में और सपोर्ट करता है अमेरिका। कितने था, यानी $50 मिलियन पर ईयर खाली एक टेलीविज़न को दिया जाता है जो फ़ारसी ज़बान में सिर्फ जहर उगलता है ईरान के ख़िलाफ़। BBC फ़ारसी $18 मिलियन दिया जाता है सालाना। मनरतू एक टेलीविज़न है फ़ारसी ज़बान में, जो ये सब टेलीविज़न जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ये सब यूरोप बेस्ड हैं, अमेरिका बेस्ड हैं या सऊदी अरबिया बेस्ड हैं, वहाँ पर होते हैं और वहाँ से फिर इनको अमेरिका सपोर्ट करता है और ये फिर फ़ारसी ज़बान के अंदर इनहराफ फैलाते हैं। सैटेलाइट सपोर्ट इनको हासिल होती है। सैटेलाइट सपोर्ट उसकी तो क्या बात है, अभी आपने देखा एलियन मास्क नामी जो इदारा है उन्होंने बाकायदा कहा कि हम इंटरनेट फ्री कर देंगे। मुराद ये है कि अगर ईरानी गवर्नमेंट इंटरनेट को बंद भी करना चाहे तो भी आपका रब्ता ऐसी सैटेलाइट से हो जाएगा। और ये एलियन मास्क अमेरिकन बेस्ड कंपनी के जो उनको कहती है कि आप जैसा चाहें बातचीत करें, जितना चाहें रब्ता रखें, हत्ता कि इनको वो मोबाइल फ़ोन्स दिए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा अमेरिका ख़ुद कहे कि वो मोबाइल फ़ोन्स दे दें कि जो किसी भी तरह से
जिन्हें नहीं पकड़ा जा सके, जिन्हें आज़ाद हों, जहाँ चाहें जब चाहें बात कर सकें। तो ये इतने पैसे जो खर्च हो रहे हैं, मैं भी अगर आपको उसकी तफसीलात थोड़ी सी और बताता हूँ कि मन और तू को ये $20 मिलियन दे रहे हैं पर ईयर। इसी तरह से जिसको हम वॉइस ऑफ अमेरिका कहते हैं जो फ़ारसी ज़बान में है, इसको $17 मिलियन का बजट सालाना दिया जाता है। इसी तरह से जम टीवी है, इसको $24 मिलियन का बजट सालाना दिया जाता है। इसी तरह से अमेरिका MBC पर्शियन है कि जिसको $15 मिलियन का यानी $810 मिलियन जो है वो ख़र्च किए जाते हैं सिर्फ फ़ारसी ज़बान किसी तरह से फ़ारसी अवाम को गुमराह किया जा सके सालाना बुनियादों पर। ये उसके अलावा है कि जो NGOs की सपोर्ट करते हैं, NGOs को जो बजट दिया जाता है वो $105.5 मिलियन है। $105.5 मिलियन सालाना मुख्तलिफ़ NGOs को दिया जाता है कि जो किसी तरह से हालात को ख़राब करें। और जो इसके अलावा आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं उनको जो असलहा दिया जाता है वो अलग है। जो कुर्दिस्तान में चल रही है उसको जो असलहा दिया जाता है, जो बलूचिस्तान में चल रही है उसको जो असलहा दिया जाता है, जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं दुनिया के अंदर। इसी तरह से जो ब्रेन लेके ख़रीदे जाते हैं, उठाए जाते हैं ईरान से आसानी के साथ, पहले उनको तुर्की का सफ़र करवाया जाता है। तुर्की का सफ़र पूरी दुनिया से आप करें, आपको वीज़े ना मिले। ईरान के लिए उन्होंने फ्री वीज़ा रखा हुआ है। ईरानी वहाँ जाते हैं, वहाँ से फिर ट्रेनिंग होने के लिए कभी फ़लस्तीन जा रहे हैं, यानी इसराइल, मकबूजा फ़लस्तीन जिसको आप इसराइल कहते हैं, कभी वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, कभी अमेरिका ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनके ना पासपोर्ट होते हैं ना इनका वीज़ा लगता है। इसी तरह से कई महीने गायब रहते हैं। एक सिलसिला है कि जो सब पकड़े गए, ये बातें जो मैं कर रहा हूँ वो लोग के जो पकड़े जाने के बाद अभी इन्हीं मुजाहिरों में भी और गुज़श्ता मुजाहिरों में भी जब पकड़े जाते हैं, हक़ाइक़ सामने लाए जाते हैं, टेलीविज़न के आगे सामने बात करते हैं, तो वो फिर सारे बातें करना शुरू कर देते हैं। हमने कहाँ से ट्रेनिंग ली, हम कहाँ गए थे, कितने अर्से कहाँ पे रहे थे। फिर उनकी तस्वीरें भी आना शुरू हो जाती हैं, फिर उनकी वहाँ की वीडियोज़ भी इनको मिल जाती हैं। और फिर एक भरपूर ईरान का अपना एक अमनीती निज़ाम है कि जो बहुत मजबूत है और वो ये सारी बातें कहीं ना कहीं से निकाल लेता है। तो हर दफ़ा होता है 4-5 दिन ये बड़ा उरूज पे जाता है। उरूज पे जाना मुझे लगता है कि ख़ुद ये ईरान की अपनी पॉलिसी होती है कि ये लोग खुल के सामने आएँ, ये निजासतें जो छुप जाती हैं, ये अपने आप को जो कहीं किसी जगह पे खुफिया रखती हैं, बाहर आएँ। और वो बाहर आती हैं। जब वो बाहर आ जाती हैं और वो जितने खुफिया लोग के जो ये समझ रहे होते हैं कि वाकई इस दफ़ा तो इनकलाब ख़त्म हो जाएगा, वो सब बड़े भरपूर अंदाज में बाहर आ जाते हैं, मीडिया के ऊपर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, अवाम में मुजाहिरों में शामिल हो जाते हैं। उसके में मीडिया के लोग हैं, उसमें आप सेलिब्रिटीज़ हैं, उसके अंदर जो है वो ये जो गेम्स के लोग, गेम्स खेलने वाले लोग हैं, उसमें जो है वो प्रोफेसर्स, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लोग मौजूद हैं। ये सब एक बार जो छुपा हुआ ख़जाना अमेरिका समझ रहा होता है हमारा है, वो सारा बाहर आता है। और वो कहते भी हैं कि आ जाओ सारे, क्योंकि अब जो है वो टाइम ख़त्म हो गया है, अब हमारे पास ये आखिरी मुजाहरे का वक्त है, इसके बाद फिर शायद मौका ना मिले। तो ये सब बातें बुनियाद बनती हैं और फिर लोग बाहर आ जाते हैं। तो मैं एक की तरफ इशारा कर रहा था कि मैं किसी और तरफ चला गया, वो महंगाई है। वो महंगाई और ख़ुसूसन अभी जो मौजूदा रईसी आने के बाद जो इस्लाहात की हैं, कि जो चीखें तो निकलनी थी, इस्लाहात क्या हैं? वो एक सब्सिडी सिस्टम था, सब्सिडी का एक निज़ाम है कि जो ईरानी अपने बजट का हिस्सा, ईरान गवर्नमेंट हमेशा बजट का हिस्सा डालती थी कि चीज़ें तो महंगी हैं, यानी आटा तो 100 रुपये का है लेकिन आवाम को 50 का मिलता है, 50 रुपये गवर्नमेंट देती है। शक्कर तो 20 रुपये की है, 10 रुपये आवाम को डालने पड़ते हैं, 10 रुपये गवर्नमेंट डालती है। ये सब्सिडी था, ऑयल सब्सिडी के ऊपर है, इनका तेल सब्सिडी के ऊपर है, इनकी गैस सब्सिडी के ऊपर है, इनकी खाने की अशिया सब्सिडी के ऊपर है, हत्ता कि इनके ट्रेन के टिकट्स और प्लेन के टिकट्स लोकल के लिए वो सब भी सब्सिडी पर है। तो ये सब्सिडी का जो निज़ाम था ना, जब आगा आए इन्होंने देखा कि सब्सिडी से फ़ायदा करने उठाने वाले खाली ईरानी नहीं हैं। इस सब्सिडी से आपने देख लिया ईरान के अंदर कितनी, पाकिस्तान में कितनी ईरानी मसनूआत आई कि जो आप इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें तेल से लेकर और डेयरी की चीज़ों से लेकर और फिर बिस्किट्स, चॉकलेट, पता नहीं क्या कुछ, ये जो आप सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे असल में सब्सिडी गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को दी थी। लेकिन इस सब्सिडी से ईरान के लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, इराक़ के लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, तुर्की के लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं और अज़रबैजान के लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। यानी 5 से 6 मुल्क बाकायदा ये उस सब्सिडी से इस्तेफ़ादा कर रहे थे कि जो ईरान इतनी पाबंदियों के बावजूद भी अपनी आवाम के लिए बजट का हिस्सा डाला करता था इन मसनूआत में, कि जो रोज़मर्रा की मसनूआत हैं और इससे दुनिया इस्तेफ़ादा कर रही थी। तो उन्होंने पहले बड़ी कोशिश की स्मगलिंग को रोका जाए, जब नहीं हो पाया तो उन्होंने फिर सब्सिडी सिस्टम को ख़त्म किया और वो जो पैसे सब्सिडी की सूरत में पहले चीज़ों में डलते थे वो लोगों के अकाउंट में डलना शुरू हो गए। लेकिन लोगों की उन्होंने पहले शनाख्त की कि किसको कितनी ज़रूरत है, किस घर में कितने फ़र्द हैं, किस घर का बंदा कितनी जॉब करता है, उसके पास गाड़ी कितनी है। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा तजिया हुआ पहले ईरानी अवाम का
और उसके बाद फिर ये उनके अकाउंट में डलना शुरू हुए। लेकिन इस प्रोसेस में जो टाइम लगा उसमें चीज़ बहुत ऊपर गई और अमेरिका ने बाकायदा बहुत काम किया। जैसे आपके मुल्क के अंदर डॉलर आपने देखा कहाँ गया और पाकिस्तानी रुपीज़ और जो मसनूआत आपके यहाँ पाकिस्तानी चीज़ों की कीमत बढ़ी है, इससे 2 गुना ज़्यादा स्पीड वहाँ पर थी, क्योंकि वहाँ तो अमेरिका डायरेक्ट मुलव्वस हो रहा था चीज़ों में। और दूसरी तरफ सिस्टम एक ऑपरेशन के मरहले से गुजर रहा था, एक ऑपरेशन चल रहा था बड़ा, जिसको हम सब्सिडी ख़त्म करने का ऑपरेशन कहते हैं। तो क्योंकि ये 2 चीज़ें मिल गई, वहाँ पर एक महंगाई भी थी। आवाम के बाहर आ जाने में बड़ा एलिमेंट वो बच्ची नहीं है, वो 24 साल 22 साल लड़की नहीं है कि जो मरी और अपने हार्ट अटैक से मरी, और इसलिए मरी कि वो पहले से नशा करती थी, वो पहले से बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला थी, और उसकी बहन बाकायदा कुरान जलाने में, उसका भाई कुरान जलाने में मुलव्वस था। और वो ये बातें उसको एकदम याद आ गई कि शायद मुझे पुलिस ने उन वजूहात की बुनियाद पर पकड़ लिया कि जो मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने जो ट्रेनिंग ली हुई है, आज़ादी की तहरीकें जो उठी हुई हैं कुर्दिस्तान के अंदर, उसमें जो हमने ट्रेनिंग ली हुई है, शायद इनको वो पता चल गया है। यानी उसको एक हार्ट का इस वजह से इशू हुआ। यानी मुझे एहतमालात दे रहा हूँ मैं, लेकिन जो उसकी तस्वीरें सामने आ गई, जो उसकी वीडियो सामने आ गई हैं, फिर जो उसके ब्रेन की जो बाद में उन्होंने तस्वीरें खींचने के बाद सीटी स्कैन किया, वो सामने आई, तो पता चला कि वो तो एक नशा और अद्वियात इस्तेमाल करने वाली एक खातून। बहरहाल अब इसके अंदर उस लड़की को बहाना बनाने के बाद ये सारी जो ईरान के अंदर छुपे हुए अमरीकी ख़जाने थे, समझते थे अमेरिका कि हमारा एक बहुत बड़ा ग्रोह मौजूद है ईरान के अंदर, वो सारा बाहर आ गया। और ईरान शायद हमेशा 5 दिन 6 दिन इसलिए देता है कि उसके बाद जब शनासाई हो जाए, शनाख्त हो जाए सब लोगों की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठा ले, उठाने के बाद आवाम के सामने लेकर आए कि ये लोग हैं कि जो एक लड़की की वजह से मुजाहरा शुरू करने वाले हैं और ये पुलिस वालों को आग लगा दें, बाकायदा पुलिस को आग लगे। अभी तक 365 लोग ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। किन के हाथों? ये बलवाइयों के हाथों। इन बलवाइयों ने जिसको देखा कि खातून ने हिजाब किया हुआ, उसका हिजाब पीछे से उतारा, इन्होंने बाकायदा मर्दों की दाढ़ियाँ देखकर उनके ऊपर हमले किए, इन्होंने पुलिस वालों पर हमले किए, इन्होंने मजहबी इलाकों में जाके सोचा कौन बसीजी है, कौन मस्जिद के अंदर ज़्यादा आता है, बाकायदा उन लोगों के घरों पर जाकर उन पर हमले किए। 365 से ज़्यादा लोग अब तक शहीद हो चुके हैं इनके हाथों। तो एक लड़की को बहाना बना के 365 लोगों को मार देंगे? नहीं, इसका मतलब है कि ये इसमें हक़ाइक़ नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इनक़लाब इस्लामी ईरान, इनको तो छोड़ दें कि जो ईरान में मुज़ाहरे कर रहे हैं, ये जो सऊदी अरबिया और जो बैठे हुए इनके लोग हैं दुबई में और कतर में और फलां जगह पर, और इसराइली और यहूदी, आप इनको भी छोड़ दें। वो जो अमेरिकन का माई बाप है, उसको भी ये बात अंदाज़ा है कि ईरान के इनक़लाब को हम नहीं हिला सकते, ईरान के इस वली फ़क़ीह के निज़ाम को हम नहीं हिला सकते। देखें यहाँ पर रईसी अक़वाम मुत्तहिदा में जाएँ और उसके बाद जाके हाज कासिम की तस्वीर लहराएँ। ये इतना बड़ा तमाचा मारा है उन्होंने कि जिसे वो टेररिस्ट कह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने ड्रोन से हमला करके एक शख्सियत को शहीद किया, उसकी तस्वीर को जाके अमेरिका के अंदर ही लहरा देना। ये अमेरिकन जब दाखिल होते हैं ईरान के अंदर, किसी जगह पे गलती से दाखिल हो जाएं या जानबूझ के दाखिल हो, चाहे समंदरी क्यों ना हो, और जब इनको ईरानी कमांडोज पकड़ लेते हैं तो इनकी पेंटें गंदी हो जाती हैं, इनकी पतलूनें गंदी हो जाती हैं। ये वो लोग हैं, इनकी वीडियोस मौजूद हैं, देखी जा सकती है इन वीडियोस को। तो बात यह है कि अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये मुजाहिरीन ईरान का कुछ करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान का इस वक्त इनक़लाब इस्लामी ईरान निज़ाम विलायत फ़क़ीह और वो अवामी हिमायती की बुनियाद पे कि जो देखे जा सकते हैं कि जब जुमे के दिन, जो गुज़श्ता जुमा था, कि जब इनक़लाबियों ने कहा बस भाई बहुत हो गया, अब हम आते हैं रोडों पे। देखिए ये बात मोहसिन क़राइती ने कही थी, बड़ी कमाल बात थी, इसको भी ज़हन में रखिएगा कि जब आप रोडों पे जाते हैं तेहरान की और क़ुम की और जाके देखते हैं बेहिजाब ख़वातीन बहुत ज़्यादा घूम रही हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो आज कहते हैं हमारे मोहसिन क़राइती, खुदा उनकी हिफाजत करे, मोहसिन क़राइती फरमाते हैं कि ये इसलिए आपको नज़र आता है कि हमने बेहिजाब ख़वातीन को इजाज़त नहीं दी है, बाहिजाब ख़वातीन को हमारी इजाज़त नहीं कि वो रोडों पर आएँ। अगर हम किसी दिन कहें ना बाहिजाब ख़वातीन को कि आप भी रोडों पर आ जाइए, तो फिर आपको पता चलेगा कि तनासुब किसका ज़्यादा है। ये बेहिजाब तो रोड पे घूम रही है, ये तो कम हिजाब रोड पे घूम रही है, लेकिन बाहिजाब जो है वो बेकार नहीं है कि बेमकसद जो है वो रोडों पर आए। तो अगर ये बाहिजाब लोग भी रोडों पर आ गए, अगर मजहबी और इनक़लाबी लोग भी रोडों पर आ गए, तो फिर यहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं रहेगी। आप इसका देख सकते हैं, आप इसको जब कुद्स का जलसा निकले, जब मुर्दाबाद अमेरिका के दिन आ जाए, जब ये कुद्स अरबईन का दिन हो, जब इंशाल्लाह आशूर का दिन हो, आप देख सकते हैं इस ताकत को कि जो अवामी ताकत और इनक़लाबी ताकत है, अगर ये बाहर आ गई सारी की सारी, तो आप छोड़ दें इन बिके हुए और दुनिया के धुतकारे हुए लोग जो ईरान के अंदर ही समझ रहे हैं कि हम कोई ईरान के अंदर एक और इनकलाब ले आएंगे। ये टके टके पर बिके हुए लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, जब चाहे इनको लपेट दिया जाएगा, जैसे कि आपने देख भी लिया। अब अवाम बाहर आ गई है, इनको भी सबको पकड़ लिया गया है, ईरान दोबारा से अमनीत की तरफ चला गया। लेकिन इबरत चंद लोगों के लिए बहुत इसमें इबरत है।
आखिरी मराइल की तरफ मैं आ रहा हूँ गुफ्तगू के। पहली उनके लिए कि जो ईरान के अंदर जब इनकलाब अच्छा और सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो इस इनकलाब से इस्तिफ़ादा उठा रहे होते हैं, इस्तिफ़ादा कर रहे होते हैं, लेकिन जब इनकलाब को ज़रूरत पड़ती है तो खामोश रहते हैं, अपने दामन को बचाते हैं, अपनी इज्जतों को बचाते हैं। इनके लिए ये वार्निंग है कि अब अगर आवाम रोडों पर आती है ना, आप देखेंगे हो सकता है कि हमारी गुफ्तगू के बाद जो है कुछ वीडियोज़ भी आपको दिखाई जाएँ। एक लड़की है जो खड़ी है मेट्रो के स्टेशन के ऊपर और वो बेहिजाब है, यानी उसका हिजाब बहुत अच्छा नहीं है, और वो मुसलसल मुर्दाबाद अमेरिका, अभी 2 दिन पहले मुर्दाबाद अमेरिका के नारे लगा रही है, और वो बर्ग बर्ग मुनाफिक, मर्ग बर्ग मुर्दाबाद मुनाफिक के नारे लगा रही है, और अवाम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेट्रो पे जा रही है बैठने के लिए आ रही है वो सब उसका साथ दे रहे हैं। ये अगर लड़की, एक बेहिजाब लड़की अपना वजीफ़ा समझती है, जिम्मेदारी समझती है कि इनकलाब की हिफाजत के लिए मुझे बाहर आना चाहिए, तो वो मुज्तहिदीन और फ़ुक़हा से लेकर वो तमाम आइम्मा जुमा और उसके बाद ये तमाम मसऊलीन कि जो गवर्नमेंट में मौजूद हैं, इन सबको बाहर आना चाहिए। इन सबको पहले ही दिन बाहर आना चाहिए था, ये सारे अमाम रोडों पर आने चाहिए थे। हमारे लिए इबरत है कि इनकलाब से इस्तिफ़ादा करने वाले लोग आराम से खामोशी से बैठे रहें, डर जाएँ वो लोग, और वो ये समझें कि ये जिम्मेदारी जो खाली पुलिस की है, ये जिम्मेदारी खाली फ़ौज की है, ये सिपाही पासदारान की है, ये रहबर मौज़म की नहीं। ऐसा नहीं है। आप तमाम लोग जिस इनकलाब से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आते और उस इनकलाब के लिए मैदान अमल में कदम रखते और इन लोगों को जो बलवाई हैं इनको इनके घरों तक पहुँचाते। उसके बाद फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? दूसरी जिम्मेदारी उन शख्सियात की बनती है कि जो मुल्क से बाहर हैं। उनको चाहिए था वो इनकलाब की सपोर्ट के अंदर कि जो इनकलाब से खाते हैं, जो इनकलाब के नाम पर इस वक्त उनको इज़्ज़त मिली हुई है, एहतराम मिला हुआ है, चाहे वो नुमाइंदे हों रहबर मुअज़्ज़म के, चाहे वो उलमा हों, हर वो आदमी जो अपने आप को इनकलाबी कहता है, हर वो आदमी जो वलायत फ़क़ीह, निज़ाम वलायत फ़क़ीह क़ाइल है, उसे मीडिया पे आना चाहिए था। क्यों एक तरफ़ा ट्रेन चलती है? क्यों एक ही तरफ से हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर बमबारी होती है? क्यों उसी तरफ से लोगों को जो हक़ाइक़ बताए जाते हैं कि जो हक़ाइक़ नहीं भी होते वो भी बताए जाते हैं? लोग समझते हैं कि क्योंकि एक ही तरफ से खबर आ रही होती है हक़ीक़त समझी जाती है। क्यों नहीं इसमें इनकलाबी मैदान अमल में आते? क्यों नहीं वो आके वो भी सोशल मीडिया का क्यों नहीं पेट भरते? क्यों नहीं वो आके जो है ना इस जंग को रोकते जो सॉफ्ट वॉर कहलाती है? तो ये उनकी भारी जिम्मेदारी बनती है। तीसरी बात और आखिरी बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर भी अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि वो बहुत आसानी से आएंगे और रहबर के ख़िलाफ़ बात कर लेंगे, चाहे मेंबर पे क्यों ना करें, वही समझते हैं कि आएंगे और आके कहीं ना कहीं बात कर लेंगे, चाहे वो इदारों के सामने जाके क्यों ना करें। देखें, यहाँ पर भी, इस पाकिस्तान के अंदर भी इनकलाबी ताकतें इतनी मजबूत हैं कि अगर किसी ने जुर्रत की मेंबर पे बैठ के रहबर के ख़िलाफ़ बात की, या किसी भी जगह अगर ये होता है तो उसको वो आसानी से ये बात कर नहीं सकेगा, उसको आसानी से उस मेंबर पे बैठने दिया जाएगा, वो ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा। फिर अगर इस मुल्क के अंदर भी कि जहाँ इंशाअल्लाह सैकड़ों में नहीं है, लाखों में इनकलाबी मौजूद हैं और रहबर और वलायत फ़क़ीह और निज़ाम वलायत फ़क़ीह वफ़ादार हैं, वो इस मुल्क में भी इतनी आसानी से ज़िंदगी नहीं गुजारने देंगे। उन शियों को, उन काली भेड़ों को कि जो चाहे MI6 से पैसा लेती हों, चाहे किसी से पैसा लेती हों, अगर उन्होंने इनकलाब के ख़िलाफ़, ये रेड लाइंस हैं, अगर उन्होंने रहबर मुअज़्ज़म के ख़िलाफ़, उन्होंने सैयद हसन नसरुल्लाह के ख़िलाफ़, उन्होंने हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़, उन्होंने मुदाफ़िईन हरम के ख़िलाफ़ अगर कोई बात भी कही तो ये इनकलाबी नौजवान उनको यहाँ इस मुल्क में ज़िंदा नहीं रहने देंगे। इतनी आसानी से उनकी आवाज़ों को जो है ना वो मेंबरों पर नहीं आने देंगे। तो खुदा का शुक्र है जैसे कि ईरान के अंदर इनकलाबियों ने उठती हुई और कासा लेस है अमेरिका के, इनकी आवाज़ों को दबा दिया। और ये जो MI6 से और CIA से और मोसाद से पैसा लेके समझ रहे थे कि वो कुछ कर लेंगे, अगर उनकी आवाज़ों को वहाँ दबाया जा सकता है तो इसी तरह से MI6 से लेकर CIA से लेकर और रा या मोसाद किसी से भी अगर हमारे अंदर, शियों के अंदर काली भेड़ें किसी भी सतह पर हों और वो किसी भी तरह की साजिश करना चाहती हूँ, अगर वो पर निकालेंगे तो उनके परों को काट दिया जाएगा। ख़ुद एहतियात करनी है आपको, फिर बाद में इनकलाबियों को इल्ज़ाम मत दीजिएगा, क्योंकि अब हम जिस मरहले में दाखिल हुए हैं हम महसूस करते हैं कि इंशाअल्लाह इमाम ज़माना का ज़हूर बहुत नज़दीक है और वो अब वो जुर्रत चाहते हैं कि आएँ और आके इंशाअल्लाह जुर्रत के साथ अपनी वजूद और अपनी मौजूदगी का इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब को ना पहले कोई कुछ कर सका था, ना अब कर सका है और ना आइंदा इंशाअल्लाह कुछ कर सकेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।